morning, student. Here is our online lecture. Welcome to Phoenix Foundation. Today's lecture is class 10th. For class 10th SSC सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स 2 और चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले सर्कल. ओके, इस टॉपिक में अपन कवर करने वाले हैं ओके सर्कल का बेसिक कंसेप्ट, कुछ थ्योरम्स एंड प्रैक्टिस सेट 3.1. लेट्स स्टार्टेड. ओके, लुक, सबसे पहले सर्कल के कुछ बेसिक थिंग्स अपन पढ़ाई करते हैं, समझते हैं उसको. ओके ओके, अ सर्कल हैज़ अ सेंटर. सर्कल को एक सेंटर होता है. ओके, एंड दैट इज द नेम ऑफ द सर्कल. ओके, दैट बेसिक थिंग्स वी हैड लर्न इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. ओके, this is the radius of the circle. Okay, starting from the center to the circle. Okay, this line is known as radius. Okay, this is the diameter. Okay, as we know that diameter a line that passing to the center and reach to the end on the circle. Okay, the line is called PQ. This is PQ. Okay, okay, how many chords can we draw in a circle? There are infinite chords can we draw in a circle. Okay, so this is also chord. Okay, so AB is a diameter as well as chord. AB is the diameter as well as chord, so we can say that AB is the diameter is the longest chord of the circle. Okay, look, here is name of the circle. Okay, look, radius of the circle, there are three radius. If you observe that, okay, OC is the first radius, OA is the second radius, and OB is the third radius. Okay, there are infinite radii we can draw in a circle. Okay, look, this is a diameter AB. Okay, uh, we have to write the name of the circle, radii of the circle, and diameter of the circle, and third element of the circle is chord. Okay, there is a chord PQ. Okay, these are some basic concept, basic elements of the circle. उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसका रेडियस की नेम कैसे लिखते हैं, डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड्स क्या होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, there are some basic formulas related to the circle. Okay, first of all, okay, radius. Okay, look, what is the radius? If you observe that OA is the half part of the diameter. Okay, that is the radius. Okay, so radius is d upon 2. Okay, so diameter, look at the diagram. AO is the one radius and OB is the second radius. Okay, this is R, this is R plus R बनता है अपना diameter. So 2R is the diameter. Look, area. Okay, if you observe that, if you can shade this part, okay, this shaded part, this the whole part is known as area, and the formula of the area is, okay, pi r square. Okay, okay, this is the area of the circle. Okay, the value of pi is 22 upon 7 or 3.14, as we all know that. Okay, next है circumference. Okay, circumference actually is the perimeter of the circle. It means that it is the length of the, look, it is the length of the whole border of the circle. ये पूरा कितना सेंटीमीटर है, that is called circumference. Okay, the formula of circumference is first 2 pi r, okay, and second one is pi d. Okay, these are the some basic elements of the circle, okay, that we had learned in your previous standard. Let's come to know
the some new elements of this circle in this chapter. Okay, let's start. Okay, secant and tangent. Okay, look at this. What is the secant and what is the tangent? Okay, look, in the first diagram there is a circle and this is a line L. A line L in the second diagram, line M intersect to the circle at one and only point externally. This line is known as tangent. Okay, what is a tangent? Tangent is a line that intersects to the circle at one and only point, okay, which is externally touching point. Okay, so in this figure, M is the tangent, line M is the tangent, and P is the point of contact of a circle. Okay, look at the second diagram, third diagram. Line L intersect to the circle at 2 points. Okay, line L intersect to the circle at 2 points. Okay, this line is known as secant. This line is known as secant. Okay, तो टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है एक्सटर्नली, एंड सेकेंड सर्कल को secant is the line that is intersect to the circle at 2 points. Here is P and Q, sorry, Q and R, these are 2 points. Okay, let's come to know some theorems about tangent. Okay, theorem 3.1. Okay, in the next some lectures we will be prove the theorem 3.1. Okay, in this video, in this lecture, we will be learn only some basic concept of these theorems. We do not prove this statement theorems. Okay, only understood some basic concept of this theorem. Okay, look at this. What is the theorem? Theorem 3.1. A tangent at any point of a circle. कोई भी एक टेंजेंट है उस सर्कल को किसी भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. ओके, तो वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस को दैट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. ओके, सपोज देर इज अ सर्कल बी. ओके, और बी से अगर यहाँ तक अपन लाइन ड्रॉ करती है, ओके, तो ये बन जाती है उसकी रेडियस. ओके, तो रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, तो ये जो रेडियस है यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ दिस थ्योरम. ओके, कोई भी टेंजेंट हो वो रेडियस को परपेंडिकुलर होती है. ओके, तो इस बेसिक कंसेप्ट को आपको याद रखना है. इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. ओके, और ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है. ओके, और ये जो सेकेंड है, इस सेकेंड के बारे में नेक्स्ट क्विज प्रैक्टिस सेट में एग्जांपल आने वाले हैं, तब उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अपन टेंजेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे और इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स और एग्जांपल स्टडी करने वाले. ठीक है. ओके, ओके, थ्योरम 3.2. लुक, a line perpendicular to a radius at its point on a circle is a tangent. ये जो थ्योरम है वो टेंजेंट के बारे में है. ठीक है. ओके, look at this is a circle M. okay, there is any line L, ये L line दिख रही है आपको यहाँ पे, any line L, okay, which is perpendicular to the radius, okay, at the point N. N इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ये जो लाइन L है, ओके, और ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, देन द थ्योरम said that the line L is a tangent. Okay, once again I will read the statement of the theorem. A line perpendicular to a radius at its point on a circle is a tangent to the circle. तो ये tangent है. ओके, और बेसिकली अपनी टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू द सर्कल एट वन एंड ओनली पॉइंट. एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होनी चाहिए, उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है.
चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन. Okay, look, what is the given information we had given? Okay, first of all, M is the center of the circle. Okay, तो एग्जाम में हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया रहेगा. ओके, उसके ऊपर हमें ओके ये डायग्राम गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ, ये तीनों भी चीज़ें हमें प्रूव करनी है. तो पहले लिखा हमने इन सर्कल M. ओके, sec Mn is a radius and line L is perpendicular to segment Mn at N. Okay, look, this is the line L. Okay, ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है सेग Mn को और एट N, सेग Mn को एट N एंड Mn इज द रेडियस. तो ये जो रेडियस है लाइन L को परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन N. ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ओके, लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, इसको हमें प्रूव करना है. लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. ओके, प्रूफ, चलिए देखते हैं प्रूफ क्या है. कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? ओके, टेक एनी पॉइंट P other than N. तो इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस डायग्राम, ओके ओके, टेक पॉइंट P, ये लाइन L जो आपको दिख रही है, इस L पे हमें एक एनी पॉइंट लिया है P अदर देन N. ये N के अलावा और एक पॉइंट लिया है हमने P, और ये PM को हमने ज्वाइन किया है. PM मोदी नहीं है, PM ये लाइन हमने क्या की है, ज्वाइन की है. ओके, P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है. कौन से लाइन के ऊपर? ये लाइन L के ऊपर. ओके, और ये N और P डिफरेंट पॉइंट्स है. ओके, नेक्स्ट, ऑन द लाइन L ड्रॉ सेक MP. अभी हमने देखा कि ये जो लाइन L है इसके ऊपर हमने ये MP एक लाइन ज्वाइन कर दी है. दिस इज योर कंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ इन ट्राइंगल MNP, लुक एट द डायग्राम. कौन सा ट्राइंगल है? MNP. ये जो ट्राइंगल है, ओके, इसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले. ओके, तो वी नो दैट यहाँ पे गिवन में ही है परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है. ओके, ये जो रेडियस है इस लाइन को परपेंडिकुलर है. और ये ट्राइंगल कौन सा है फिर? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, angle N is a right angle, okay, which is given. Sec MP is the hypotenuse. Obviously, अगर लाइन MP ये 90 के सामने वाली साइड है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन MP should be hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of the circle. Sec MP is smaller than Mn. Look at this, sec MP is greater than Mn. ओके ओके, तो ये sec MP is greater than Mn. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज hypotenuse is the longest side of the circle. Hypotenuse is the longest side of the triangle, sorry. Okay, so as the sec Mn is a radius, okay, MP is the greater side and Mn is the smaller. So MP is the greater than Mn. Okay, as sec Mn is the radius, okay, point P can't be on a circle. Okay, look at this. अगर ये Mn अगर रेडियस है, Mn अगर रेडियस है, तो ये N पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है. ओके, तो MP इज नॉट रेडियस क्योंकि ये इससे ग्रेटर है. तो ये P इज कांट
P cant on a circle. Okay, so there is only one point on a circle, that is N. No other point except point N on line L is on the circle. Okay, so therefore line L is the only line L intersect the circle in one and only point N. तो यहाँ पे जो लाइन L है, ओके, ये सर्कल को एट वन एंड ओनली पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. सो एज द डेफिनेशन ऑफ tangent, a line intersect to the circle at one and only point, it is called tangent. Okay, line L is a tangent. Okay, so line L is a tangent to the circle. Okay, by the definition of tangent. Okay students, please take a screenshot of this theorem. Okay, let's go third theorem, theorem number 3.3. okay, this is known as tangent segment theorem. Okay, here is the diagram of tangent segment theorem. Okay, look at this. Okay, this is two tangent. Okay, tangent PD and tangent DQ. Okay, so let's first read the statement of the theorem. Tangent segments drawn from the external point to a circle are congruent. It means that एक्सटर्नल पॉइंट से ओके हम ओनली टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल को. तो ये जो टू टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. ओके, लुक, पी डी एंड डी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टेंजेंट. इसे हमें प्रूव करना है. ओके, लुक व्हाट इज द गिवन. इन सर्कल ए DP and DQ are two tangent segments from the external point D. Look at this. This is the center of the circle A. PD and DQ are the tangent. To prove seg PD या तो DP बोल सकते हैं, is congruent DQ. Okay. कंस्ट्रक्शन. ओके, हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है फॉर द प्रूफ द स्टेटमेंट. ओके, ड्रॉ ए पी ए क्यू एंड डी क्यू. ओके, इसमें ए पी ए क्यू एंड ए डी. लुक, ये जो ए पी है इसको हमने ड्रॉ किया है, ए क्यू को ड्रॉ किया है एंड ए डी इज ऑलरेडी देयर. by tangent theorem, radius, okay, AP is the radius is perpendicular to tangent PD. Okay, here radius AQ is perpendicular to tangent DQ. हमारा एक बेसिक थ्योरम है, tangent is perpendicular to radius. Okay, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन. Okay, look at this. Okay, there is your radius AP and radius AQ and AD. ये हमने ज्वाइन किया है. एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ये टू क्या किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए. ओके, प्रूफ. इन ट्राइंगल APAD and QAD and triangle QAD. Look at this. There is a triangle PAD. This is your first triangle and
ए क्यू डी, दिस इज योर सेकेंड ट्रायंगल। ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है पी ए इज कॉन्ग्रेंट ए क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दिस इज द रीजन। लुक, पी ए एंड ए क्यू आर रेडियाई ऑफ टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये सर्कल के रेडियस है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल है, ओके। सेकेंड पार्ट कॉन्ग्रेंट है, ई डी इज कॉन्ग्रेंट ED, common side of the circle. If you observe that this ED is the common side of this triangle and the second triangle. Third, angle APD and angle AQD is equal to 90 degree, यानी कि both angles are equal, okay, by tangent theorem. Look, angle P and angle Q are congruent because each 90 degree, okay. So by which condition these two triangles are congruent? Okay, this is right angle, this is side, and this is its hypotenuse. So triangle PAD and congruence with triangle QAD by RHS test, right angle, hypotenuse and sides, okay. So these two triangles now are congruents, okay. So their congruent parts is also equal, okay. If two triangles are equal, then their corresponding parts of the triangles are congruent. So we can prove that PD is congruent DQ. Look, so say DP is congruent DQ, okay. यहाँ पे हमने रीजन लिखा है corresponding sides of congruent triangle CSCT, okay. This is your theorem 3.3. Please take a screenshot of this theorem, okay, and solve your, okay, and solve this, okay. As for practice, take a different diagrams for your proof, okay. इससे आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, okay. Now next, let's begin with practice set 3.1. Okay, so if you have textbook, you read first this question, okay. I will write here directly the given information given, okay. Question first. Okay, in circle C, radius 6 centimeter, AB is the tangent, distance AB is equal to 6 centimeter. Look at the diagram. In circle C, ये circle C है, ठीक है। AB is the tangent, okay. tangent किसको बोलते हैं? जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, AB is the tangent, okay. Okay, AB is the 6 centimeter, distance AB 6 centimeter है, and radius, ये जो radius आपको दिख रहा है ये भी 6 centimeter है, which is given, okay. To find, क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट, मेजर ऑफ एंगल CAB फाइंड आउट करना है, ओके. एंगल CAB, ओके. ये कितना डिग्री रहेगा? कैन यू गेस? ओके, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, सो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ओके. तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, ओके. तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप? बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके. चलिए सेकेंड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं. सेकेंड टू फाइंड AC फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ ऑफ AC, ओके. इफ़ यू ऑब्जर्व दैट AC इज द रेडियस, सो दैट AC is 6 centimeter because of given. थर्ड, डिस्टेंस BC हमने फाइंड आउट करना है. Look at the diagram, distance BC, okay. If you observe that BC is the hypotenuse, this is right angle triangle, this side is 6 centimeter, AB is also 6 centimeter, so okay, by पाइथागोरस थ्योरम से हम BC को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो ओरली हमने इसका आंसर बता दिया, लेकिन इसको लिखते कैसे है, ओके, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना है, ओके. लेट्स स्टार्ट. और एक उसमें टू फाइंड है मेजर ऑफ एंगल ABC भी निकालना है, ओके. तो देखते हैं कहाँ पे एंगल ABC, ओके. इनफैक्ट हमें ये B एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है. एक तो 90 डिग्री हमें पता चल गया है, ठीक है.
और ये एंगल अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते सॉल्यूशन। ओके, नाउ सॉल्यूशन। Okay, first, since AB is the tangent and AC is the radius of the circle, look at AB is the tangent, AC is the radius, so radius is perpendicular to tangent. Therefore, by tangent theorem, AB is perpendicular to AC. Tangent is perpendicular to radius. ओके, या तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। हमें पहले एंगल सी ए बी निकालना है। देखिए यहाँ पे सी ए बी, तो इसके लिए हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दो लाइन होती है, ओके, विच इज 90 डिग्री टू द अदर साइड। ओके, सेकेंड, ए सी इज द रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए सी। तो ए सी इज द रेडियस, so obviously AC is equal to 6 centimeter, that is given। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, हमें थर्ड में BC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, BC। सिंस AB एंड AC आर 6 सेंटीमीटर, तो AB गिवन में 6 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, ओके, हमें निकालना है BC। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है, BC फाइंड आउट करना है। ओके, इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसके टू साइड्स इक्वल है। कौन से साइड्स इक्वल है, AB एंड AC। If two sides of a triangle is equal, then this triangle is known as isosceles triangle। तो ABC isosceles triangles है। तो इसके जो बेस एंगल है, ये इक्वल साइड के सामने का एंगल B और ये इक्वल साइड का सामने का एंगल C, तो ये दोनों भी एंगल्स इक्वल रहेंगे, बिकॉज बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। लुक, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये एंगल C है और ये एंगल B है। ओके, C और B दोनों भी इक्वल है, तो हम उसको रीजन लिखते हैं बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू x। उसको हम x कंसिडर करते हैं। ओके, now in triangle ABC, look at this is triangle ABC। ये टू एंगल्स जो है एंगल C एंड B, इसको हमने x कंसिडर किया है। ओके, लुक, एंगल ACB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं एंगल CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स की सम 180 होती है। ओके, तो एज वी नो दैट, ओके, हमने इसको x कंसिडर किया है। एंगल ACB इज इक्वल टू ACB x, CBA x, तो x प्लस 90, ये एंगल 90 है, दैट इज हमने फाइंड आउट किया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, वैल्यू पुट आउट किया हमने, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, सो 2x इज इक्वल टू 180, ये 90 को ट्रांसफर किया, माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 90। ओके, x इज इक्वल टू 90 बाई 2, 2 को ट्रांसफर किया है यहाँ पे, 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 45। तो x क्या है हमारा, x इज द एंगल, ओके, ABC, ये एंगल हमारा x था, तो x आ गया आपका 45। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर आंसर्स। ओके, तो ये जो वीडियो है आप
टाइम टाइम पे के ऊपर पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है आपको और उसको स्टडी करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आपके सामने टेबल होना चाहिए। यहाँ पे मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। ओके, लुक एट द गिवन इंफॉर्मेशन। इन सर्कल ओ sec rm and sec rn are tangent segments. Look at the diagram. In circle O, ये circle O है, mr and rn are two tangent from the point R and ये two tangent सर्कल को m and n इस 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज योर डायग्राम। ओके, लुक, दिस इज और कंस्ट्रक्शन है। ओके, OR is 10 centimeter, radius is 5 centimeter. Look at this, this is OR, ये गिवन में दिया हुआ है। ये जो OR है ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, एंड ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये जो रेडियस है ये 5 है और ये भी रेडियस कितना है, 5 है। ओके, लुक एट दिस, रेडियस 5 सेंटीमीटर ओएम 5 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। टू फाइंड, देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट्स। ओके, लुक एट दिस, ये टेंजेंट सेगमेंट है एम आर यानी आर एन, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सेकेंड, मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखते डायग्राम में, एम आर ओ, ये एंगल कितना डिग्री है ये हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड, मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, एम आर और ये बड़ा एन, तो ये पूरा एंगल आर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो टू फाइंड में हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फाइंड आउट करना है, एंगल आर निकालना है और ये बड़ा एंगल एम आर एन ये पूरा निकालना है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से, टू ड्रॉ ओ एम ओ एन एज अ रेडियाई। लुक एट दिस, इस डायग्राम में हमने ओ एम एंड ओ एन ये टू रेडियस ड्रॉ किए। ये जो डॉट डॉट लाइन वाले ये जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नंबर फर्स्ट, सिंस एम आर एंड एन आर टेंजेंट सेगमेंट एंड ओ एम एंड ओ एन आर रेडियाई। फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया है। ओके, एम आर एनी एन आर टेंजेंट सेगमेंट और ये दो क्या है, रेडियस ओ एम एंड ओ एन। ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम, तो हमारा टेंजेंट थ्योरम क्या है, सॉरी बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, सॉरी बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, एंगल एम ओ एम आर एंड एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, लुक, तो ये रेडियस है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है ये टेंजेंट है। ओके, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। ओके, लुक, तो ये दोनों भी एंगल 90 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल ओ एम आर, क्योंकि हमें ये एंगल आर हमें ये टेंजेंट निकालनी है पहली। कौन सी, ये टेंजेंट, ये एम आर निकालनी है हमें। ओके, वी नो दैट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, ये टू टेंजेंट्स कॉन्करेंट होते हैं, तो कोई भी एक टेंजेंट निकालो। तो हमें इस ट्राइंगल में अपन काम कर रहे हैं, ओ एम आर, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये टू साइड्स हमें पता है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ आर, ओके, और ये साइड है और ये हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ओके, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओके, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओके। वैल्यू पुट आउट करते हैं, 10 स्क्वायर, ओ आर क्या है 10 स्क्वायर, ओके, ओ एम 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओके। 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर 25 एम आर स्क्वायर, ओके। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, ये जो 25 है इसको इधर ट्रांसफर करती है, इधर प्लस, इधर जाने के बाद माइनस होता है, ओके। 100 माइनस 25 हो जाता है 75, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ओके। तो ये जो 75 है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एज वी नो दैट 75 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो अपन इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लुक, तो सबसे पहले हमें एक टेक्निक मालूम होनी चाहिए स्क्वायर रूट निकालने की। तो हमने उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। लुक एट दिस, दिस इज 75, ओके। इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ओके। तो 5 15 ज़ा 15 5 ज़ा 75 होता है, फिर से 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ओके। तो 5 3 ज़ा 15, ओके। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1। तो यहाँ पे आगे इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो लोग प्राइम फैक्टर क्या है, ओके, 5 इंटू 3, इसमें से पेयर कौन सी है, तो ये पेयर है, ठीक है। तो हमें 75 का जो स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो 75 का स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो पेयर है इसका प्रोडक्ट करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3, ओके। तो ये 5 इधर बाहर आ जाता है, 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ओके। और अंदर क्या रहता है √3, ओके। तो 75 का स्क्वायर रूट होता है 5√3, ओके। चलिए, एम आर इज इक्वल टू 5√3, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है 5√3 कैसे गए। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ओके। टेक योर स्क्रीनशॉट, ओके, ये हो गया फर्स्ट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओके, एम आर ओ ये फाइंड आउट करना है, एम आर ओ ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। तो पहले क्या करते हैं अपन, ये एम आर तो आ गया, तो अभी एन आर भी फाइंड आउट करते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम। आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3, तो आर एम 5 है तो आर एन भी क्या आएगा 5√3, ओके। तो ये आ गया आपका आंसर। लेंथ ऑफ each tangent segments is 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये एम आर ओ ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपन इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं आर एम ओ, इन ट्रायंगल आर एम ओ, ओके। एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। एज वी नो दैट ये जो एंगल एम है ये कितना है 90 डिग्री है, ओके। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। तो ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में, ओके, इस ट्रायंगल में ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो ओ एम इज हाफ ऑफ ओ आर। देखिए ये जो ओ एम है ये हाफ ऑफ ओ आर है। कैसे बोलेंगे अपन, क्योंकि 10 का हाफ क्या होता है 5, तो ये जो ओ एम है इसकी ट्वाइस हो गई ओ आर, और ओ आर की हाफ हो गया 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओ एम इज हाफ ऑफ ओ आर, ओके, इज गिवन इंफॉर्मेशन से, ओके। तो एक थ्योरम है 30 60 90 थ्योरम, ओके। चलो, ओके। therefore angle MRO, ओके, एंगल MRO, ओके। तो MRO, ओके, ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि 30 की सामने वाली साइड, ओके,
हाइपोटेन्यूज की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो ये कॉनवर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम। ओके, तो मैं 30-60-90 थ्योरम क्या है इसके बारे में एक बार बताता हूँ। लुक, इफ ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। तो सपोज ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ओके। तो 30 के सामने वाली साइड, तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। 30 के सामने वाली साइड्स क्या है, ए बी। तो ए बी होता है हाफ ऑफ ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। एंड बी सी 60 सामने वाली की 60 डिग्री वाली सामने वाली साइड होती है √3/2 ऑफ ए सी, ओके। तो ये बेसिक 30-60-90 थ्योरम है, ओके। तो ओके, तो इस टेक्निक से हमने एंगल एम आर ओ निकाला है, वो कितना है 30 डिग्री, ओके। तो ये बाय कॉन्वर्स ऑफ 30-60-90 डिग्री है। 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है, ओ आर इज द हाइपोटेन्यूज, और ये 30 के सामने वाली साइड है ओ एम। तो ये जो ओ एम है उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एम आर ओ। तो एम आर ओ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। थोड़ा कंसेप्शनल है, उसको अच्छी तरीके से आपको समझना है, ओके। चलिए, सिमिलरली एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जिस तरीके से ये एंगल हो गया 30 डिग्री, उसी तरीके से ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये हाफ होता है, तो ये सिमिलरली यहाँ पे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं 30 डिग्री, ओके। सो तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड में का सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं, ओके। तो हमें अभी ये एंगल निकालना है एम आर एन, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। ऑब्वियसली ये 30 है, तो 30 मिलके बनता है 60, तो ये एंगल बन गया 60, ओके। एंगल एम आर एन, ओके, एम आर ओ प्लस एन आर ओ, एम आर ओ एन आर ओ, ये दोनों भी हमने 30 निकाला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज करने वाले अपन एंगल आइडिंग प्रॉपर्टी, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका थर्ड आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन सेकंड के ये थर्ड क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये जो क्वेश्चन है, देखो, सेक आर एम एंड सेक आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। देखिए डायग्राम में, सेक आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। द सेम फिगर इज द प्रीवियस क्वेश्चन की भी यही डायग्राम थी, यही क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। टेंजेंट सेगमेंट, ओके, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ओके। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ओ आर कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये जो ओ आर है, ओके, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ओ एन, एम ओ एन का ये बाइसेक्टर है। और एक चीज़ प्रूव करनी है हमें, ओके, ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑल्सो एंगल एम आर एन, ओके। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है। तो क्या करेंगे अपन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये बन जाएगा बाइसेक्टर, ओके। तो बेसिकली बाइसेक्टर कंसेप्ट क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, ओके। देखिए, फॉर एग्जांपल एक एंगल है, ओके, ओके, इसका नाम देते हैं अपन ए बी सी, एक एंगल है, ओके। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, बी डी, ओके। तो ये जो बी डी एक लाइन है, इससे इस एंगल के टू एंगल्स बन गए। तो ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है, ओके। तो बी डी इज द लाइन दैट बाइसेक्ट, बी डी इज द लाइन इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बी डी इज नोन एज बाइसेक्टर, ओके। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल के दो इक्वल पार्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ओके, ये ओ आर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन
in circle O, segment RM and RN are tangent segment. To prove OR is the bisector of angle MRN as well as angle MON. MON and MRN ये दो एंगल्स का बाइसेक्टर क्या है? OR है. ये OR इसका बाइसेक्टर, ये हमें प्रूव करना है. OR बाइसेक्टर है. ओके चलो प्रूफ. तो यहाँ से स्टार्ट करते अपन प्रूफ. OM is the radius and MR is the tangent. Look, OM is the radius and MR is the tangent. Okay. By tangent theorem, जैसे कि हमने पढ़ा था tangent theorem, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इसमें. tangent theorem क्या बोलता है? tangent is perpendicular to radius. तो ये जो टेंजेंट है इस रेडियस को परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है. ओके चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है बाय टेंजेंट थ्योरम. ओके. OM इज परपेंडिकुलर टू MR. देखिए OM इज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू MR. Therefore, angle OMR is equal to 90 degree. Similarly, we can prove, similarly, ON is the radius and NR is the tangent. ON is the radius, NR is the tangent. Therefore, ONR is equal to 90 degree. Okay. तो आगे चलते हैं. Now, in triangle MRMO and RNO, okay, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? RMO and RNO. ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया अपन ने और ये ट्राइंगल्स, इस टू ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने वाले हैं. कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ये 90 है, ये 90 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और एक कॉमन साइड है. तो ये दो ट्राइंगल्स के हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंगल RMO एंड एंगल RNO इज इक्वल टू ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ईच 90 डिग्री. अभी हमने प्रूव किया है बाय टेंजेंट थ्योरम. ओके. सेकेंड, OR इज कॉन्ग्रुएंट OR. ये हो गया इसकी कॉमन साइड. देखिए ये OR. ओके. OM is congruent ON, radii of same circle. ये OM और ये OM इक्वल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल. ओके. ऑब्वियसली एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ट्राइंगल RMO कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल RNO बाय RHS टेस्ट. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. ओके. एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO. ओके. MRO एंड NRO, ये दो ट्राइंगल्स के ये दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट मैंने बताए. ठीक है. एंड दूसरा है MRO एंड NRO. MOR एंड NOR. तो यहाँ पे जो करेक्शन है उसको एक बार क्लियर करते हैं. तो यहाँ पे होना चाहिए O और यहाँ पे होना चाहिए R. MRO एंगल. ओके. चलिए इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. क्योंकि ये टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल. ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल. ओके. Sec OR is the bisector of angle MRN and angle MON. Okay. MRN and MON ये हो जाएगा बाइसेक्टर, क्योंकि दो एंगल्स क्या है? इक्वल है. ठीक है. तो आपके पास आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके.
तो ये वीडियो चलने वाला है, तो इस वीडियो के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. Look, ओके देखिए यहाँ पे ये सर्कल ओ है, इसके टू टेंजेंट है, ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट, ओके ए बी, ये हो गया सेकेंड टेंजेंट सी डी, ये जो टू टेंजेंट है ये पैरेलल है, ओके एक्स वाई अ लाइन दैट पासिंग टू द सेंटर, ओके विच इज़ पैरेलल टू दिस टू लाइन्स। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ओके साथ ही साथ हमने ये एक डायमीटर भी ड्रॉ कर लिया है एम एन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट इन सर्कल ओ, हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है इसलिए हम सब लेट में कंसिडर करने वाला है। ठीक है, फिर से देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये टू टेंजेंट है पैरेलल टू द सर्कल, ओके ओके तो इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, यानी कि ये पूरा डायमीटर कितना है ये निकालना है हमें। तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, टेंजेंट ए बी इज पैरेलल टू टेंजेंट सी डी, ये गिवन है, टेंजेंट ए बी टू टेंजेंट सी डी, ओके एंड टचेस टू द सर्कल at point M and N, at point M and N. Okay, draw line XY is parallel to AB and parallel to CD. हमने ये XY एक लाइन ड्रॉ की है जो इसको और इसको पैरेलल है। ओके, इसको अपन स्टेटमेंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं, तो ये तीनों भी लाइन पैरेलल हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, सिंस AB CD आर tangent segment, okay OM ON are radii, okay देखिए AB is tangent, OM is radii radius, CD is tangent, ON is radius, okay by tangent theorem। तो tangent theorem क्या बोलता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री रहेगा, ये एंगल्स 90 डिग्री रहेगा, tangent is perpendicular to radius, okay एंगल एम AMO एंड एंगल CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, यानी कि एंगल M एंगल N इज 90 डिग्री, स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, नाउ लाइन AB is parallel to XY and OM is tangent, sorry OM is transversal. AB and XY are two parallel lines form one, okay OM is the transversal, okay as we know that ये टू पैरेलल साइड है तो ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल ए बी आर टू पैरेलल लाइन, सी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये जो टू एंगल्स बनते हैं जो अंदर वाले हैं इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है उसकी सम होती है 180 डिग्री। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करने वाले हैं। ओके ओके, एंगल AMO प्लस एंगल MOX इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल M और एंगल O क्या है 180 डिग्री। ओके, इंटीरियर एंगल्स, ओके तो एंगल M इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने पुट किया यहाँ पे, एंगल MOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल MOX ये 180 है, 90 इधर ट्रांसफ़र किया तो एंगल MOX इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमने MOX ये जो एंगल है इसको प्रूव किया हमने, ये 90 डिग्री है। ओके, चलो देखो हमने प्रूव किया है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, और उसके बाद अपन ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने वही डायग्राम ड्रॉ किया है। सिमिलरली okay CD is parallel to
यहाँ पे पैरेलल का साइन होना चाहिए, चलो साइन दे देते हैं पैरेलल का। ओके ठीक है। सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई। देखिए सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड ओ एन इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर these two angles are 180 degree. Okay. एंगल एक्स एन ओ प्लस एंगल सी एन ओ, एक्स एन ओ यानी कि एंगल एन, तो ये एंगल एन है और ये एंगल सी एन ओ यानी कि ओ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके इसका रीज़न लिखेंगे अपन इंटीरियर एंगल, बिकॉज सिमिलरली लिखा है तो रीज़न लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 को ट्रांसफ़र किया। ओके 180 माइनस 90, ओके एंगल सी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखिए हमने अब तक क्या क्या प्रूव किया है कि ये 90 है, ये भी 90 है। ओके ओके इसका मतलब है अगर कोई भी एक फ्लैट लाइन है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, अगर मैं दोनों की सम करूँगा तो ये बन जाएगा 180, यानी कि ये लाइन जो है ये एक ओके प्लेन लाइन है। ओके तो ये लाइन प्लेन बन जाती है, ठीक है, इसी का अपन यूज़ करने वाले। ओके नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या बोलता है, एंगल एम ओ एक्स एंड एन ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ओके तो एम ओ एक्स एंड एन ओ एक्स ये 90 प्लस 90 हमने प्रूव किया है। ओके फ्रॉम 2 और 3 से, तो ये बन गया 180 डिग्री दोनों की सम। वी कैन से दैट एंगल एम ओ एक्स एंड एंगल एन सी एन ओ आर लीनियर पेयर। ओके लीनियर पेयर क्या होती है, किसी भी दो एंगल की सम अगर 180 होती है तो वो लीनियर पेयर होता है। तो ये इसके दोनों के एंगल की सम कितनी है, 180 है, तो लीनियर पेयर है, ठीक है। रे ओ एम क्या बोल रहे हैं अपन, रे ओ एम एंड ओ एन आर अपोजिट रे। देखिए ये जो ओ एम है और ये ओ एन है ये अपोजिट है, क्योंकि अगर ये 180 है इसकी सम, तो ये एक प्लेन लाइन है, एक रे है और ये अपोजिट है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ऊपर जा रही है लाइन, ये नीचे जा रही है लाइन। ओके तो ये अपोजिट रे है, क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, ये एक फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ओके एंड पॉइंट एम ओ एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके चलो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर 3 पॉइंट्स है, जस्ट ए मिनट, अगर 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में से कोई भी एक ही लाइन पास हो रही है तो इस पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। ओके देन therefore mn is the distance between two parallel lines, two parallel tangent। अगर ये अगर एक ही लाइन है mn, इसका मतलब है तो एम एन बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ पे 90 है यहाँ पे 90 है, ये परपेंडिकुलर लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो एम एन है ये बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन। तो हमें ये एम एन ही निकालना है जो डिस्टेंस है इस टू पैरेलल लाइंस में से। ओके एम एन इज अ डायमीटर, बाय कंस्ट्रक्शन एम एन हमने डायमीटर ड्रॉ किया है। ओके एम एन इज 2 रेडियस, तो डायमीटर का फार्मूला आता है डी इज इक्वल टू 2r। okay 2 into 4.5 centimeter, because radius is given in the questions, that is 4.5 centimeter। okay mn is equal to 9 centimeter। okay answer, distance between parallel tangents is 9 centimeter। तो ये हो गया 9 centimeter। okay so thank you very much guys। ओके ये लेक्चर मैंने काफ़ी एंजॉय किया है, आज का ये मेरा यूट्यूब का पहला लेक्चर था। आशा करता हूँ आपने भी ये लेक्चर काफ़ी एंजॉय किया होगा। ओके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से के साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। ओके तो अगर आप यूट्यूब पे है तो हमारे ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए
जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आगे चल के कॉमर्स 12 की भी कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला है। ओके, साथ ही साथ 5 to 10 तक हर लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।